एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसमें हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था और उसके जो विजेता हैं उनका नाम हम अगले वीडियो में रिवील करेंगे, आपको बताएंगे कौन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उसमें कमेंट करके आंसर दिया है और वो हम आपको कल बता पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं और 4th यूनिट टेस्ट भी हुआ था ऑनलाइन, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था और उन सब के विनर्स हमने आपको बताए थे। आज वो सारे विनर्स हमारे साथ हैं, तो हम उनको वन बाय वन आज के वीडियो में स्टेज पे बुलाएंगे और फेलिसिटेट करेंगे। एंड शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 4th यूनिट टेस्ट से। 4th यूनिट टेस्ट में दो विनर हैं जिन्होंने 4th यूनिट टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। उसमें से एक है शिवम। बिग हैंड फॉर शिवम। कंग्रेचुलेशन शिवम। Now I would like Shivam to tell how he won this competition. So first of all, thank you so much, sir, for giving me this prize and organizing this type of competition. So it was a 4th unit test, and I learned when I got a notification, I read very carefully that questions, and I got a prize. Now I am a winner. Thank you so much. Okay. So now we have the second highest scorer, Mr. Puneet. Puneet, please come on the stage. Congratulations. Thank you, sir. Now I want to know from Puneet, how did you win this competition? First of all, I would like to thanks for giving this opportunity, sir. Okay. And I'll separate properly online notes Okay. and press a bell icon. And when you uploaded the video, I get a notification, and I watched every video. And sir, finally, I won the game Alright. test, sir. So are you making online notes as well? Yes, sir, separately. Okay. You watch every video lecture? Yes, sir. Really? Yes, sir. So is your English improving? Yes, sir. Exactly. It's improving? Yes, sir. All right. Thank you, sir. Congratulations. Now we have Satyendra, who has given the fastest and the most accurate answer in previous video. Congratulations. Congratulations. So we want to know your opinion and your views. How you're feeling? I feel so good about this, and I want to share with you my some little bit hard work with this. So, especially my writing skill helped me to get this golden opportunity, and I want to give the whole credit to my own teacher, Mr. Arvind sir, who just kept teaching us on the YouTube channel. Through that, we got to know about a lot of things about English. So we want you to just subscribe search channel and just keep watching his video. One day you will have a lot of knowledge about English. Thank you so much. Satyendra, I have some more questions. Do you watch every video? Yes, I do watch, but sometimes I fail to watch, but I repeat them. All right. And do you think that your English is improving? Is it improving? Yes, definitely. I'm able to say that that your online YouTube channel, which is being provided a lot of videos. Through that, it is able to sharpen our communication skill.
and I'm able to happy to get these videos through the YouTube channel, and the poor families are getting to your videos, so that will be much better to get to them this. Thank you so much, sir. Congratulations once again. नाउ आप सबको पता है हर संडे को क्विज होता है और उस क्विज में भी एक स्टूडेंट जो भी फास्टेस्ट आंसर देते हैं ठीक 10 बजे, हर रविवार को ठीक 10 बजे क्विज होता है। इस संडे को भी होगा, आप भी भाग ले सकते हैं और क्विज विनर भी हमारे साथ हैं। आई वुड लाइक टू कॉल सिद्धार्थ ऑन द स्टेज। सिद्धार्थ प्लीज कम ऑन। कांग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. So Siddharth, I think this is your 4th time, right? When you have won the quiz. How are you feeling? I'm feeling well, sir, and thank And you. how do you win every time? Sir, I write every sentences and carefully reads and making notes and watch every video, online videos and making notes and I got notification and carefully I question read and I give answer and I won this quiz. So are you happy? I'm happy, sir. Very happy. Congratulations. Thank you, sir. Now we have Shiv Bahadur, who has also given the fastest answer in one of the videos. Please come on the stage. Congratulations. Okay, sir. So now I want to know, Shiv Bahadur, how are you feeling? I feel good, sir. So how many times have you got the highest marks and won? I think 3 times, sir. 3 times? Yes, sir. Are you happy? Yes, sir. I'm Do you watch every video? Yes, sir. I watch. Do you make the notes? Yes, I make, sir. All right. Congratulations. Thank you, sir. So now I want all of you to be here, all the winners on a single frame. Please come on the stage. One is missing. Show me your face. All right. So guys, are you happy? Yes, sir. Really? Yes, sir. All right. So do you want to participate in further videos as well? Yes, sure, sir. Okay, fine. Congratulations. Thank you, sir. And so please keep uploading videos, sir. We are learning and we are improving our English too much, sir. Definitely, definitely. Thank We you. will. Thank you, sir. Thank you. सो गाइस, जैसा कि आपने देखा किस तरह से बच्चों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए और फास्टेस्ट स्पीकर बने। इन्होंने इस तरह से क्विज को जीता है। किस तरह से बच्चों ने भाग लिया और इस क्विज को जो अलग अलग क्विज हुए उनको जीता। एंड अब उन सभी को हम कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे और उन्हें हमने अप्रिशिएट किया जितना हम अपनी तरफ से कर सकते थे। आप लोग भी इस तरह से पार्टिसिपेट करें एंड भाग लें और आप भी जीत सकते हैं, आप भी विनर हो सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें आप पार्टिसिपेट करके विनर हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टेंस।
हमने पिछले वीडियो में बात किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट के सारे टेंसेस को हमने अच्छे से लर्न कर लिया है। हमने लर्न किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लर्न किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज हम लोग शुरू करेंगे सीखना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो गया है। आज हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को लर्न करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों नोट्स, कब इस टेंस का हम यूज करेंगे। तो बच्चों इस टेंस का हम यूज करते हैं, दिस टेंस डिनोट्स दैट, ये टेंस हमें यह बताता है कि वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी काम पास्ट में या भूतकाल में शुरू हुआ, एंड फिनिश्ड शॉर्टली, और कुछ समय में खत्म हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस बच्चों जो ये बताते हैं कि काम कुछ समय के लिए शुरू हुआ और खत्म हो गया, पास्ट की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं इस टेंस को। तो चलिए देख लेते हैं, इसकी हिंदी भी हम लिख देते हैं ताकि आपको यदि इस नोट को ना समझ पा रहे हो तो आप हिंदी में समझ जाएं। तो बच्चों यह टेंस बताता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और कुछ समय में खत्म हो गया। तो ऐसे काम, छोटे छोटे काम जो पास्ट में शुरू हुए और खत्म हो गए, शुरू हुए और खत्म हो गए, शुरू हुए और खत्म हो गए, ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमको यूज करना होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका नाम इंडेफिनिट क्यों पड़ा है, ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था। आप यदि नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो आप पिछले वीडियोस में जा करके इसे देख सकते हैं, और मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके डे 1 से क्लास अटेंड करें, वहां नोट्स बनाएं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी आईडी। तो बच्चों इस तरह के हिंदी सेंटेंस में हमें वर्ड मिलेंगे या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, राइट। ऐसे वर्ड्स हमें मिलेंगे, वहां हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये आईडी है, पहचान है इस टेंस की। जैसे आप बोलते हो कल मैं गांव गया, वहां अपने मम्मी पापा से मिला, मैंने खूब मजा किया, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया।
तो हर सेंटेंस में आप देखो या ई ए आ रहा है। कई बार आप ऐसा भी बोल देते हो, मैं गांव जाता था, मैं वहाँ लोगों से मिलता था, मजा करता था। तो ऐसे में भी आप ता था ती थी आता है तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। रूल सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी उसका सेकंड फॉर्म लगेगा। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे अदर वर्ड्स। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल आपके सामने है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सेकंड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा उसके बाद अदर वर्ड्स। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने कल उससे बात की। तो देखिए ई आ रहा है, कल मैंने कल उससे बात की। आई टॉक्ड टू हर yesterday. I talked to her yesterday. मैंने कल उससे बात की। I talked to her yesterday. आप पिछले महीने वहां गए। आप पिछले महीने वहां गए, ए आ रहा है बच्चों। आप पिछले महीने वहां गए। यू वेंट देयर लास्ट मंथ। मैंने उसे खूब समझाया। मैंने उसे खूब समझाया। या आई मेड हिम अंडरस्टैंड a lot. I made him understand a lot. I made him understand a lot. मैंने उसे खूब समझाया। उसने मुझे आपके बारे में बताया। या He told me about you. उसने मुझे आपके बारे में बताया। He told me about you. He told me about you. आपने उसे नाचने को कहा। या आ रहा है, आप देखिए, आपने उसे नाचने को कहा। You asked him to dance. You asked him to dance. आपने उसे नाचने को कहा। You asked him to dance. हमने उससे मदद मांगी।
हमने उससे मदद मांगी, वी आस्क्ड हर फॉर हेल्प, वी आस्क्ड हर फॉर हेल्प, हमने उससे मदद मांगी। आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कल उससे बात की, आई टॉक्ड टू हर यस्टरडे, आप पिछले महीने वहां गए, यू वेंट देयर लास्ट मंथ, मैंने उसे खूब समझाया, आई मेड हिम अंडरस्टैंड अलॉट। यहां हमने पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज किया है बच्चों। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पॉजिटिव वर्ब पे पूरा हमने वीडियो बना दिया है, उसे आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद उसने मुझे आपके बारे में बताया, ही टोल्ड मी अबाउट यू, ही टोल्ड मी अबाउट यू, आपने उसे नाचने को कहा, यू आस्क्ड हिम टू डांस, यू आस्क्ड हिम टू डांस, हमने उससे मदद मांगी, वी आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, वी आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस इसी टेंस के। स्टेप नंबर 2 होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव में क्या होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव में हम लोग यूज करेंगे डिड नॉट का, डिड या पूरा नॉट, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डिन, सब्जेक्ट प्लस डिन, और यहां जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों वहां वर्ब में लगेगी फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिन प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एमवी फर्स्ट मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। अब आइए कुछ नकारात्मक सेंटेंसेस हम देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैंने उसे नहीं पीटा, मैंने उसे नहीं पीटा, तो देखिए बच्चों आ रहा है नहीं, मैं आई, डिड नॉट हो जाएगा डिन, पीटना के लिए यूज करते हैं बीट, और उसे के लिए हो जाएगा हिम। मैंने उसे नहीं पीटा, आई डिडंट बीट हिम, आई डिडंट बीट हिम, आई डिडंट बीट हिम। ती थी, देखिए वह मूवी देखना पसंद नहीं करती थी, नहीं भी आ रहा है, ती थी भी आ रहा है, वह मूवी देखना पसंद नहीं करती थी, शी डिडंट लाइक टू वॉच द मूवी, शी डिडंट लाइक टू वॉच द मूवी, शी डिडंट लाइक टू वॉच द मूवी, वह मूवी देखना पसंद नहीं करती थी। मैं खेलने से नफरत नहीं करता था, नहीं था, मैं खेलने से नफरत नहीं करता था, आई डिडंट हेट, हेट के बाद यदि हम डायरेक्टली वर्ब रखते हैं बच्चों तो उसमें आईएनजी हमें लगाना होता है, जरंड का यूज करते हैं, आई डिडंट हेट
playing. I did not hate playing. I didn't hate playing. मैं खेलने से नफरत नहीं करता था. I didn't hate playing. उसे झूठ बोलने में मजा नहीं आता था. उसे झूठ बोलने में मजा नहीं आता था. देख लिए नहीं आ रहा है और था आ रहा है. उसे शी डिड एंजॉय का यूज करेंगे बच्चों. शी डिडंट एंजॉय में मजा आना के लिए हम एंजॉय का यूज करते हैं. शी डिडंट एंजॉय और इसके बाद भी या जो भी वर्ब आएगी तो हम आईएनजी लगाएंगे, जेरेंड का यूज करेंगे. शी डिडंट एंजॉय लाइन. शी डिडंट एंजॉय लाइन. उसे झूठ बोलने में मजा नहीं आता था. शी डिडंट एंजॉय लाइन. तो देखिए बच्चों, नेगेटिव के 4 सेंटेंसेस हमने दिए हैं. ज्यादा एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं दे पाते हैं वीडियोस में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 4 एग्जाम्पल्स ही देते हैं. बट हम चाहेंगे कि हर एक फॉर्म का कम से कम 2-2, 4-4 एग्जाम्पल्स आप अपने घर पे जरूर बनाएं. मैंने उसे नहीं पीटा. आई डिडंट बीट हिम. वह मूवी देखना पसंद नहीं करती थी. शी डिडंट लाइक टू वॉच द मूवी. मैं खेलने से नफरत नहीं करता था. आई डिडंट हेट प्लेइंग. उसे झूठ बोलने में मजा नहीं आता था. शी डिडंट एंजॉय लाइंग. शी डिडंट एंजॉय लाइंग. तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. अब आइए हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर. थर्ड स्टेप जो होगा बच्चों वो होगा इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इंटरोगेटिव में बच्चों हमने सारे जितने भी पहले टेंसेस पढ़ाए उसमें भी आपको बताया है कि केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे. यहां हेल्पिंग वर्ब है डिड. सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए और सब्जेक्ट को अपनी जगह पे रहने दीजिए और सेंटेंस के लास्ट में आपको यूज कर देना है क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने पहले भी बताया है कि यस नो क्वेश्चंस भी हम बोलते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्नों के आंसर केवल हम हाँ और नहीं में ही दे सकते हैं, इसीलिए इन्हें हाँ नहीं वाले प्रश्न बोलते हैं. अब आइए देखते हैं हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो गाइस, आर यू रेडी? पहला सेंटेंस है, क्या आपने उसे आते हुए देखा? क्या आपने उसे आते हुए देखा? क्या और या आ रहा है बच्चों तो हो जाएगा डिड यू सी हिम कम? डिड यू सी हिम कम. क्या आपने उसे आते हुए देखा? डिड यू सी हिम कम. और आप ऐसा भी बोल सकते हो डिड यू सी हिम कमिंग. ठीक है, यहाँ पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, जरंड का भी यूज कर सकते हैं, आईएनजी भी लगा सकते हैं. डिड यू सी हिम कमिंग और डिड यू सी हिम कम. अगला एग्जाम्पल है, क्या वह गांव चली गई? डिड शी. क्या आ रहा है और ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा डिड शी गो टू विलेज? डिड शी गो टू विलेज. क्या वह गांव चली गई? डिड शी गो टू विलेज.
क्या उन्होंने आपका दिल दुखाया? तो यहां देखिए बच्चों, क्या भी आ रहा है और या ए भी आ रहा है। ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। डिड दे, दिल दुखाना को इंग्लिश में बोलते हैं हर्ट, आपका तो हो जाएगा यू। डिड दे हर्ट यू? क्या उन्होंने आपका दिल दुखाया? डिड दे हर्ट यू? क्या गुल्लू ने फगुनिया से शादी कर ली? क्या गुल्लू ने फगुनिया से शादी कर ली? क्या और ई आ रहा है। डिड गुल्लू मैरी फगुनिया? डिड गुल्लू मैरी फगुनिया? क्या गुल्लू ने फगुनिया से शादी कर ली? डिड गुल्लू मैरी फगुनिया? अब आइए एक बार फिर से हम इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। पहला है, क्या आपने उसे आते हुए देखा? डिड यू सी हिम कम? क्या वह गांव चली गई? डिड शी गो टू विलेज? देखिए क्या भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। डिड शी गो टू विलेज? क्या उन्होंने आपका दिल दुखाया? डिड दे हर्ट यू? डिड दे हर्ट यू? क्या गुल्लू ने फगुनिया से शादी कर ली? डिड गुल्लू मैरी फगुनिया? इस तरह से आप इस रूल को फॉलो करके बच्चों ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये था बच्चों स्टेप नंबर 3। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। अब स्टेप नंबर 4 में देखिए कुछ खास नहीं करना है। यहां डिड नॉट लिखा है, इसी में हमें लगा देना है नॉट। डिड लिखा हुआ है, इसी में हमें लगा देना है अपस्ट्रॉफी एनटी, ऐसा हमें कर देना है, राइट। और हिंदी सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है कि नहीं? हर एक सेंटेंस में क्या आएगा और साथ ही साथ नहीं आएगा। क्या क्या आएगा बच्चों? क्या एंड नहीं। तो देखिए यहां तो क्या आ ही रहा है, क्या आपने उसे आते हुए देखा। अब ये सेंटेंस आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्या आपने उसे आते हुए नहीं देखा? यहां लगा दीजिए नहीं। तो देखिए क्या तो आ ही रहा है, साथ ही साथ नहीं आ गया, तो डिड में लगा देना है नॉट, तो ये हो जाएगा डिन। डिन यू से हिम कम? क्या आपने उसे आते हुए नहीं देखा? डिडंट यू से हिम कम? इसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या वह गांव नहीं गई? क्या वह गांव नहीं चली गई? क्या और नहीं, यहां भी डिड में क्या लग जाएगा बच्चों? नॉट। तो क्या हो जाएगा? डिडंट शी गो टू विलेज? डिडंट शी गो टू विलेज? आप ऐसा भी बोल सकते हो, नॉट को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में पूरा नॉट आप बोल सकते हो, डिड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब। ओके, तो इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हो, डिड शी नॉट गो टू विलेज, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या उन्होंने आपका दिल नहीं दुखाया? तो यहां देखिए बच्चों क्या आ रहा है, साथ ही साथ नहीं भी आ रहा है, क्या और नहीं, तो यहां लग जाएगा डिड नॉट। ठीक है, क्या उन्होंने आपका दिल नहीं दुखाया? डिडंट दे हर्ट यू? डिडंट दे हर्ट यू? अगला है, क्या गुल्लू ने फगुनिया से शादी नहीं की? तो देखिए बच्चों सेंटेंस आ रहा है, क्या गुल्लू ने फगुनिया से शादी नहीं की? सबसे पहले आएगा डिड नॉट। डिडंट गुल्लू मैरी फगुनिया? डिडंट गुल्लू मैरी फगुनिया?
तो ये बच्चों स्टेप नंबर 4 हो गया, जिसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, स्टेप नंबर 4 है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्टेप नंबर 5। बस 2 स्टेप और बच्चों और ये टेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस केवल वही है, सबको 6 फॉर्म में चेंज करने का तरीका वही है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है, वर्ब के फॉर्म्स बदलते हैं तो मीनिंग बदलती है, बाकी तरीका वही है जिस तरह फर्स्ट टेंस का था, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। स्टेप नंबर 5 को हम बोलते हैं, जो बच्चे डीएससीएल सीधी में ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं या अपने यूट्यूब चैनल पे भी जुड़े हैं, उनको भी पता चल गया है कि 5th स्टेप यहाँ क्या होता है। 5th स्टेप को बोलते क्या है? 5th स्टेप कहलाता है डबल इंटरोगेटिव। क्या कहलाता है बच्चों? डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो डबल इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसमें करते क्या है ये भी आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है बच्चों की। सबसे पहले इसमें क्या आता है? WH फैमिली। WH फैमिली यहां आएगी, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब यहां आएगा डिड, फिर आता है बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर क्वेश्चन वर्ब। सबसे पहला ये होगा, नंबर 2 पे ये डिड होगा, नंबर 3 पे सब्जेक्ट, नंबर 4 पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नंबर 5 ऑब्जेक्ट, नंबर 6 अदर वर्ड, नंबर 7 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो रूल देखिए आपका हमारे सामने, आपके सामने रूल तैयार है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बच्चों डिटेल्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये यस नो क्वेश्चंस नहीं है, ये हो गए डिटेल्ड क्वेश्चंस। यहां हम सारी जानकारी डिटेल में लेते हैं, विस्तार में। इन प्रश्नों का उत्तर आप हाँ नहीं में नहीं दे सकते हैं। यदि आप हाँ नहीं में देते हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है, आप कल वहां क्यों गए? तो देखिए आपके सामने सेंटेंस है, आप कल वहां क्यों गए। आ रहा है क्यों। क्यों के लिए सबसे पहले WH फैमिली का एक मेंबर आ जाएगा वाई। उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे डिड, तीसरे नंबर पे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, वाई डिड यू। चौथे नंबर पे आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब है जाना, जाना को बोलते हैं गो, ठीक है। पांचवें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पांचवें नंबर पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है नहीं। छठवें नंबर पे अदर वर्ड, अदर वर्ड है वहां, वहां के लिए हम यूज कर देंगे देयर, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सेंटेंस हमारा बनके तैयार है, आप कल वहां क्यों गए। वाई डिड यू गो देयर यस्टरडे, वाई डिड यू गो देयर यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल आइए देखते हैं, उसने क्या बनाया। उसने क्या बनाया, क्या इस बार सेंटेंस के बीच में बच्चों मैंने बताया था आपको कि यदि पहला वर्ड क्या ना हो, राइट, दूसरा वर्ड या तीसरा कहीं भी बीच में सेंटेंस में आ जाए तो हम व्हाट का यूज करते हैं। उसने क्या बनाया, सबसे पहले आएगा व्हाट, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट ही, और फिर आ जाएगी मेन वर्ब बनाना मेक। उसने क्या बनाया, व्हाट डिड ही मेक, व्हाट डिड ही मेक। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
सेंटेंस है अगला बच्चों, उसने किसे किसे आमंत्रित किया, उसने किसे किसे आमंत्रित किया। सबसे पहले आ जाएगा हु, उसके बाद लग जाएगा बच्चों किसे किसे, देखिए रिपीट हो रहा है तो लग जाएगा ऑल। हु ऑल डिड शी, और आमंत्रित करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इनवाइट। Who all did she invite? Who all did she invite? ठीक है, एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप कहां आपने कहां उसे बुलाया, आपने कहां उसे बुलाया। तो देखिए इस बार आ रहा है बच्चों कहां, कहां के लिए हम यूज करेंगे वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड, आपके लिए यूज करेंगे यू, और बुलाना के लिए यूज करेंगे कॉल, और उसे आ जाएगा हिम। वेयर डिड यू कॉल हिम, आपने उसे कहां बुलाया, वेयर डिड यू कॉल हिम, वेयर डिड यू कॉल हिम, आपने कहां उसे बुलाया। अगला एग्जाम्पल है, उसने इसे कैसे किया। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है बच्चों, उसने इसे कैसे किया। कैसे आ रहा है, सबसे पहले कैसे के लिए आप यूज करेंगे क्या, हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, हाउ डिड ही डू सो, या आप ऐसा भी बोल सकते हाउ डिड ही डू इट, सॉरी हाउ डिड ही डू इट। उसने इसे कैसे किया, उसने इसे कैसे किया, हाउ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट ही, डू इट। हाउ डिड ही डू इट, उसने इसे कैसे किया, हाउ डिड ही डू इट। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आपने किसके लिए फोन खरीदा, आपने किसके लिए फोन खरीदा। यहां आ रहा है बच्चों किसके लिए, किसके के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर whom did you buy a phone, फॉर whom did you buy a phone, आपने किसके लिए फोन खरीदा, फॉर whom did you buy a phone। एक बार फिर से सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप कल वहां क्यों गए, why did you go there yesterday। दूसरा है उसने क्या बनाया, what did he make। तीसरा है उसने किसे किसे आमंत्रित किया, who all did she invite। अगला है आपने कहां उसे बुलाया, where did you call him। उसने इसे कैसे किया, हाउ डिड ही डू इट, हाउ डिड ही डू इट। और अगला है आपने किसके लिए फोन खरीदा, फॉर whom did you buy a phone, फॉर whom did you buy a phone। ये था स्टेप नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर, और इसी के साथ आपका ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्टेप है बच्चों डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या करना है बच्चों, कोई खास चीज हमें नहीं करनी है, जो हेल्पिंग वर्ब लगी है उसमें लगा देना है हमें नॉट। डब्ल्यूएच फैमिली डिड नॉट को जोड़ करके कॉन्ट्रैक्शन इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा डिन,
फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। अब आइए 2-3 एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं और इसी के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल आपके साथ सामने है। आपने उसे क्यों नहीं आने दिया? आपने उसे क्यों नहीं आने दिया? तो देखिए बच्चों, क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, या भी आ रहा है। सबसे पहले आएगा वाई, फिर डिड नॉट के लिए डिड नॉट लगा देंगे क्योंकि नहीं आ रहा है। वाई डिड यू, यहां पॉजिटिव वर्ब हम लेट का यूज करेंगे। लेट हर कम। वाई डिडंट यू लेट हर कम, आपने उसे क्यों नहीं आने दिया? वाई डिडंट यू लेट हर कम। दूसरा एग्जाम्पल है, उसने कब खाना नहीं खाया? तो देखिए कब, कब भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। When didn't she have food? DSCL के जितने भी बच्चे हैं वो खाने और पीने के लिए have का यूज करते हैं बच्चों। When didn't she have food? उसने कब खाना नहीं खाया? कब भी आ रहा था, नहीं भी आ रहा था। तो सबसे पहले आ गया when के बाद आ जाएगा did not didn't। When didn't she have food? When didn't she have food? नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, कौन रीवा नहीं गया? सेंटेंस है कौन रीवा नहीं गया। तो देखिए कौन भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। सबसे पहले आएगा हु, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हम सब्जेक्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हु डिडंट गो टू रीवा। हु डिडंट गो टू रीवा, कौन रीवा नहीं गया? हु डिडंट गो टू रीवा। और लास्ट सेंटेंस है, मैंने क्या नहीं किया? मैंने क्या नहीं किया। क्या के साथ बच्चों नहीं भी आ रहा है तो सबसे पहले आ जाएगा व्हाट और हेल्पिंग वर्ब में लग जाएगा डिड नॉट। सब्जेक्ट आ जाएगा आई और वर्ब आ जाएगी डू। व्हाट डिडंट आई डू, मैंने क्या नहीं किया। व्हाट डिडंट आई डू। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आपने उसे क्यों नहीं आने दिया? Why didn't you let her come? Why didn't you let her come? यहाँ पॉजिटिव वर्ब लेट यूज हुई है बच्चों, ने देना। यदि आपको पॉजिटिव वर्ब में कोई डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पॉजिटिव वर्ब पर वीडियो देख सकते हैं, लेट का यूज हमने क्लियर किया है। उसके बाद उसने कब खाना नहीं खाया? उसने कब खाना नहीं खाया? When didn't she have food? When didn't she have food? उसने कब खाना नहीं खाया। और अगला है कौन रीवा नहीं गया? Who didn't go to रीवा? Who didn't go to रीवा? मैंने क्या नहीं किया? क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। What didn't I do? What didn't I do? तो आई होप कि बच्चों आपको 6 फॉर्म समझ में आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अच्छे से। तो आज हमने जो टेंस क्लियर किया है आज की वीडियो में बच्चों, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है।
इस टेंस की इंपॉर्टेंस और इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि इस टेंस ने पास्ट परफेक्ट टेंस की जगह भी ले ली है। बहुत हद तक पास्ट परफेक्ट की जगह हम इस टेंस का यूज करते हैं। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट इसने पूरी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस की भी जगह ले ली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की एक्टिविटीज की। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और आज के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इस टेंस में इस टेंस को पढ़ाते समय जितने भी एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं विद हिंदी, जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में सारे एग्जाम्पल्स को कमेंट करेगा उसमें से सबसे फास्ट कमेंटर को जो कमेंट होगा, कमेंट करने वाले को मिलेगा एक प्राइज। Once again, thank you so much for watching our video and thank you for being with us. Thank you so much.